Let us start with the B exercise, that is natural, damped and forced vibrations and the most important, resonance. Now what are natural vibrations or the free vibrations? But the periodic vibrations of the body in the absence of any external force on it are called natural or free vibrations. But periodic vibrations means the vibrations which repeat after regular interval of time. And there should be no any external force, and moreover remember very important thing, that their amplitude remains same. Because sometimes this graph is also asked. Remember, here it is plus a minus a, this is your displacement, and here it is your time. This amplitude will remain same. This is called your amplitude, this one. This should remain same. Okay, so these are called your natural vibrations and there should be no any external force. Now, so nature of natural vibrations is once the body starts vibrating, it continues its vibrations with the same amplitude and same frequency. Amplitude also remains same and frequency also remains same. Frequency means same number of waves will pass through a point in 1 second. Now, this is possible only in a vacuum. Remember, they ask you where it is possible. It is possible only in a vacuum. In practice, in real life, it is impossible to have vacuum. So we cannot realize natural or the free vibrations in real practice or in actual practice. Remember that. So all these examples are also special cases considering that there is a vacuum. Remember that. Now suppose if the bob of a simple pendulum is displaced slightly from its mean position. मान लो ये आपका है pendulum, ये आपकी mean position है. अगर आपने इसको mean position से slightly shift करा extreme position पे, तो ये क्या करता है बच्चे, it will start vibrating with its natural frequency. और वो frequency का relation क्या है, हमने time period किया था 9th standard में. Do you remember? Time period is 2 pi under root L by G. फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड, उसका उल्टा. तो ये हमने इसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल, तो 1 बाई 2 पाई और अंडर रूट एल बाई जी का रेसिप्रोकल क्या बन गया, जी बाई एल बन गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके अलावा सेकंड एग्जांपल है, मान लो आपने किसी स्प्रिंग से एक लोड को सस्पेंड किया है. जब वो पूरी तरह स्ट्रेच हो गई है, आपने उसको बाद में रिलीज कर दिया, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, वेयर के इज योर फोर्स कांस्टेंट एंड एम इज योर मास ऑफ द लोड. नाउ व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क, डू यू नो व्हाट इज ट्यूनिंग फॉर्क? ट्यूनिंग फॉर्क है सा लाइक 2 आर्म्स एंड 1 prong लाइक दिस. सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को एक रबर पैड के साथ इस तरह से स्ट्रक करते हो, इट वाइब्रेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. Even when you strike the keys of a piano, various strings are set in vibration again at its natural frequency. Now when an air column in a flute, this is important, let's understand what they mean to say is, when an air column in a flute is made to vibrate, आपको पता है फ्लूट बांसुरी जिसको बोलते हो, जब उसके अंदर आप ब्लो करते हुए तो जो उसके अंदर एयर होती है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है. तो वो वाइब्रेट किससे करती है, इट वाइब्रेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. और वो जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. मींस अगर आपकी लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. इज इट क्लियर? तो इसी के बेसिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, या कम करते हैं या ज्यादा करते हैं इन द केस ऑफ अ फ्लूट. कभी बार आपने देखा होगा, कभी वो ऊपर से बंद करता है होल्स को, कई बार नीचे से करता है. क्यों? ताकि वो लेंथ ऑफ एयर कॉलम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके, क्योंकि उसी से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी. नेक्स्ट इज, आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने कोई बकेट जैसे टैप के नीचे रखी है फिल होने के लिए, और जैसे ही वो बकेट फिल होने वाली होती है, आपको ना उसके साउंड से पता लगने लग जाती है. क्यों? क्योंकि जैसे ही बकेट ऊपर को आनी शुरू हो जाती है पानी उसमें, तो क्या होता है, एयर कॉलम की लेंथ कम होने लग जाती है. और आपको मैंने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है. बच्चे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, साउंड तीखा होना शुरू हो जाता है, मतलब श्रिलर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें साउंड पता चल जाता है कि बकेट फिल होने वाली है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट क्वेश्चन is
related to stringed instruments. This I'm talking about the stringed instruments. बच्चे मुझे पता है जिसमें एयर वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. लेकिन जितने भी आपके स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, रेडियस पे और टेंशन पे. लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड टेंशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर मैं आपको कहूं कि मुझे फ्रीक्वेंसी कम करनी है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो कैसे करूंगा, तो लेंथ को बढ़ा दो, रेडियस को बढ़ा दो, टेंशन को कम कर दो, तभी फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी. क्योंकि लेंथ के वो इन्वर्सली, रेडियस के भी इन्वर्सली, टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. थोड़ा आइडिया लगा, ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है.